Assalamu alaikum students. Today the topic of our lecture is gland system. This topic is from our third chapter, which is nervous system and behavior. Glands are small organs which are usually known as knot-like organs, and they contain chemical substances. These chemical substances, once they enter into the blood, they form a chemical fluid called hormones. These hormones are discharged in the body according to the internal and external requirement of the body, and they affect our organs. There are many important functions that these hormones perform, like physical balance. They control our physical state and they also help in our physical growth. ग्लैंड्स एक ऐसे ऑर्गन है जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, जो कि रतूबतें या सिक्रीशन जिस्म में खारिज करते हैं, और ये रतूबत या सिक्रीशन हार्मोन्स कहलाई जाती हैं। मुख्तलिफ ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और ये हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर बहुत से इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म देते हैं। बहुत से इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को ये एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत से ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे जिस्म में बहुत से अफ़ाल या ऐसे फंक्शन जो कि परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनमें ये हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार रखना, हमारी जिस्मानी हालत को कंट्रोल करना, और हमारी जिस्मानी बढ़ोतरी को में भी मददगार साबित होते हैं। There are two systems, glandular systems, hexocrine or excretory systems, and endocrine or secretory systems. Hexocrine or excretory systems are also named as duct glands. These glands are in the form of cell groups which contain distinct layers or ducts. Under this system, chemical fluids either flow through these ducts to particular organs or continue accumulating in ducts. When ducts can hold no more fluid, it directly flows out of the body. Since these fluids contain poisonous substances, they can never directly enter the bloodstream. It is this system that removes the poisonous substances from the body. For example, sweat glands, saliva, stomach glands, and urinary gland are called excretory glands. Pancreatic juice secreted by pancreas also falls under this system. This pancreatic juice is released to the stomach, and it helps in digestion. Another important hormone which is released by the pancreas is insulin, which functions under endocrine system, and it directly enters the bloodstream and controls sugar level. We will discuss it later when we are going to discuss endocrine system. Hexocrine system, glandular system, डक्ट्स पर मुश्तमिल है। हेक्सोक्राइन निज़ाम यानी कि इखराजी निज़ाम, जो कि इखराजी गदूद पर मुश्तमिल है, डक्ट ग्लैंड सिस्टम भी कहलाता है। डक्ट यानी कि नाली, नालीदार नलकी। इस निज़ाम के तहत कीमियाई रतूबत या तो नालियों के ज़रिए मखसूस अज़ा में चली जाती हैं या नालियों में जमा हो जाती हैं। चूँकि इस निज़ाम में जो रतूबतें हैं वो फासिद मवाद यानी कि जहरीले मवाद पर मुश्तमिल होती हैं, इस वजह से ये खून में बराह रास्त शामिल नहीं होता, बल्कि ये जहरीले मादे एक निज़ाम के तहत हमारे जिस्म से खारिज होते हैं, जैसे कि पसीने के गदूद, लौब दहन या मैदे के गदूद। मैदे के गदूद में लुबलबा पेनक्रियाज एक ऐसा गदूद है जिसमें से पेनक्रियाटिक जूस इखराजी निज़ाम के तहत ये हार्मोन है पेनक्रियाटिक जूस जो रिलीज़ होता है और निज़ाम में मदद देता है,
यानी कि हमारे मैदे स्टमक में हाजमे में मददगार साबित होता है। और पेनक्रियाज से ही रिलीज़ होने वाला दूसरा हार्मोन इंसुलिन है, जो कि एक बहुत ही कॉमनली सुना जाता है आम इस्तेमाल में। जो डायबिटिक या ज़ैपेटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें इंसुलिन की मैल फंक्शनिंग या ख़राबी की वजह से ब्लड शुगर लेवल यानी जिस्म में शक्कर की मिकदार डिस्टर्ब हो जाती है या उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसी वजह से इंसुलिन का काम जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिस्टम ग्लैंडुलर सिस्टम एंडोक्राइन या सेक्रेटरी सिस्टम है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इसको बग़ैर नाली के या बेनालीदार निज़ाम भी कहा जाता है। It consists of small glands which are very less in weight, less than an ounce, but they release some very important chemicals which are called hormones, and these hormones directly enter the blood. And when the blood circulates within the body and it reaches the target area of the body, it acts and they perform their function. इस तरह जो हार्मोन जो कि इस निज़ाम के तहत हार्मोन खारिज होते हैं वो बराह रास्त खून में शामिल हो जाते हैं और खून की गर्दिश के दौरान ये हार्मोन जहाँ जहाँ पे असरअंदाज होते हैं अपने जो भी अमल या जो भी गदूदों जो मखसूस उन हार्मोन्स का जो भी मखसूस मकसद है उसके तहत ये जिस्म पे असरअंदाज होते हैं। नॉर्मल हालात में गदूदों के अमल और हार्मोन की मिकदार में तवाज़ुन बरकरार रहता है, लेकिन अगर किसी वजह से तवाज़ुन बिगड़ जाए तो जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस या सिस्टम्स मुतासिर हो सकते हैं और इसके सबब बहुत से डिफरेंट डिसऑर्डर्स या अमराज का सबब भी बनते हैं। डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन या दरू अफराजी गदूद और निज़ाम असबी यानी नर्वस सिस्टम में काफ़ी ताल्लुक़ पाया जाता है। Especially hypothalamus, which is directly involved in the balance of secretion of hormones. Some of the important glands that are included in endocrine system are pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, adrenal gland, pancreas gland, and gonad gland. Pineal gland, सनोबरी गदूद। सनोबरी गदूद, पिट्यूटरी ग्लैंड, बलगमी गदूद। पीनियल ग्लैंड एक बहुत ही स्मॉल, बहुत ही माइनर ग्लैंड है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तहकीकात अब तक नहीं की जा सकी। पिट्यूटरी ग्लैंड, बलगमी गदूद, which is found near temporal lobe. It is pea-sized and it weighs 0.57 grams. This is the most important gland and it produces many types of hormones. And the hormones released by the pituitary gland affect the functioning of other glands. It is also known as master gland. It has two parts, anterior lobe and posterior lobe. These are covered in a thin membrane which separates both of them. Both these parts secrete many hormones of which details is given. पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अहम तरीन ग्लैंड है क्योंकि इसमें से खारिज होने वाले हार्मोन ना सिर्फ ये कि जिस्म में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन सर अंजाम देते हैं बल्कि बहुत से दीगर हार्मोन्स को भी कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से इंटीरियर लॉब और पोस्टीरियर लॉब में से खारिज होने वाले मुख्तलिफ हार्मोन की डिटेल कुछ इस तरह से है। इंटीरियर लॉब में से जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स या रतूबतें खारिज होती हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रॉफिक हार्मोन,
एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन शामिल हैं। ग्रोथ हार्मोन GH. This hormone is involved in the growth of body height and bones. The balanced secretion of this hormone is vital for normal and harmonious growth of the individual. And this hormone continues to be discharged from birth to adulthood. And when the individual reaches full height and the growth of the bones stop, the secretion of this hormone discontinues. Normally, when these hormones are functioning properly, people vary in height. Its reason lies in the hereditary inclination. Too little or too much secretion of this hormone gives rise to various problems, of which some of them are gigantism, dwarfism, acromegaly. ग्रोथ हार्मोन यानी कि बढ़ोतरी के हार्मोन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये नशोनुमा के हार्मोन कहलाते हैं। इन हार्मोन की मुतवाज़न रिलीज़ होने की वजह से ही इंसानी जिस्म में हाइट बढ़ने का अमल और दूसरी जिस्मानी बढ़ोतरी होती है। अगर इन हार्मोन में कोई भी ख़राबी पैदा हो जाए या किसी भी वजह से इनकी सिक्रीशन कम या ज़्यादा हो जाए तो मुख्तलिफ़ मसाइल जन्म लेते हैं, जैसे कि गिगैंटिज़म यानी कि तूल कामती। If this hormone hyperfunctions in childhood, it causes overdevelopment of bones and the individual grows to abnormal height. It is named gigantism. The individual suffering from this disease has weak nerves and falls prey to various diseases even in youth. Such people suffer from osteoporosis in youth. They are lazy and lethargic. They cannot do anything nimbly. They are mentally retarded. And such people do not live long. ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें ग्रोथ हार्मोन की बेतहाशा रिलीज़ की वजह से हड्डियों की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और हाइट एबनॉर्मल हद तक बढ़ जाती है। इस बीमारी की वजह से ऐसे अफराद बहुत जल्द बहुत सी मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों की कमज़ोरी कहलाई जाती है। ऐसे लोग लेज़ी होते हैं, सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं, मेंटली रिटार्ड होते हैं और ऐसे लोग ज़्यादा अरसा नहीं जी पाते। Dwarfism. If this hormone is secreted less than normally in childhood, the individual does not grow in height and has underdeveloped bones. This is called dwarfism. पस्त कामती। जिन अफराद में ये हार्मोन बहुत ही कम मिकदार में रिलीज़ होता है चाइल्डहुड यानी बचपन में, तो ऐसे अफराद का कद और हड्डियाँ बहुत ही छोटे रह जाते हैं। Such people not only live long but also show no signs of age. Physically and mentally they are very sharp. ऐसे अफराद जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ होते हैं और काफ़ी लंबी उम्र जीते हैं। Acromegaly. If growth hormones is secreted more than usual after adolescence, the individual's jawbone gets too large and his torso grows longer than legs or vice versa. In other words, bones begin to develop again. Finger joints widen or arms grow so large that knees can be touched with hands. Besides, individual's skin gets too thick and his skeleton becomes unbalanced. अगर बलूगत के बाद भी ये हार्मोन इसका इखराज होता रहे तो ऐसे में फ़र्द के जबड़े की हड्डी बढ़ जाती है, धड़ टांगों की निस्बत ज़्यादा बड़ा हो जाता है या टांगें धड़ की निस्बत बड़ी हो जाती हैं, यानी कि बॉडी की ग्रोथ बैलेंस नहीं रह पाती। उंगलियों के जोड़ चौड़े हो जाते हैं, बाजू लंबे हो जाते हैं, स्किन बहुत यानी कि जल्द बहुत मोटी हो जाती है और फ़र्द का ढांचा गैर मुतवाज़न और गैर मामूली हो जाता है और जिस्म बेढंगा लगने लगता है। हमारा नेक्स्ट हार्मोन का सिस्टम या गदूद थायराइड ग्लैंड। क्या गदूद?
Thyroid glands are located in the neck near the vocal cord. It has two parts, of which one is on the right side, whereas the second is on the left side. Both these parts are cone-like in shape and have a thin joint in the middle. It resembles a bow tie. The important hormones are thyroid glands is thyroxine. थायराइड ग्लैंड या दरकिया का दूध हमारे गर्दन में वाक़या होता है। इसकी शेप बो टाई की तरह है। इससे खारिज होने वाले अहम हार्मोन थायरॉक्सिन है। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थायरॉक्सिन के हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि थायरॉक्सिन परफॉर्म करता है। इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट्स द डिस्ट्रक्शन एंड जनरेशन ऑफ सेल्स। हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म एक इंतहाई अहम प्रोसेस है जिसके तहत हमारा पूरा निज़ाम एक बैलेंस तरीके से खुलियात की तामीर और तख़रीब होती है, जिसकी वजह से न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एंड ओल्ड डेड सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। थायरॉक्सिन इज़ वाइटल फॉर हेल्दी हेयर एंड स्किन. It is responsible for proper and normal functioning of nerves. It also influences mental and physical development, and it contains iodine, which is particularly necessary for mental growth and agility. The malfunctioning of thyroxine creates problems like cretinism, myxedema, goiter. थायरॉक्सिन हमारे जिस्म में काफ़ी अहम फंक्शन या फ़ाल सर अंजाम देता है, जैसे कि हमारी हेल्दी बाल और स्किन, हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा, नर्व्स यानी असाब की नॉर्मल फंक्शनिंग। आयोडीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है थायरॉक्सिन का, और आयोडीन की कमी या थायरॉक्सिन की मेल फंक्शनिंग या कमी बेशी से जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दरपेश हो सकती हैं वो हैं क्रेटिनिज्म. Cretinism is the deficient secretion of thyroxine in infancy. Deficiency of thyroxine also leads to low level of iodine in body, which retards the physical and mental growth of the child, and child suffers from listlessness, lethargy, and boredom. The rate of metabolism is disturbed. If this disease is diagnosed well in time, the retarded growth and other problems can be tackled by overcoming the deficiency of iodine. क्रेटिनिज्म की बीमारी अगर बचपन में हो जाए तो बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा रुक सकती है, सुस्ती और काहली और बेजारी का शिकार हो जाता है और बच्चा किसी काम में दिलचस्पी नहीं ले पाता। अगर बचपन में ही इस बीमारी पर काबू पा लिया जाए और इसकी बर वक्त तशख़ीस की जा सके और आयोडीन की कमी को पूरा कर लिया जाए तो इन मसाइल पे काबू पाया जा सकता है। मैक्सिडिमा, अगर जवानी में थायरॉक्सिन हार्मोन कम मकदार में खारिज होना शुरू हो जाए तो फ़र्द का निज़ाम अज़बी मुतासिर होता है, ज़हनी सलाहियतें मुतासिर होती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, सुस्ती छा जाती है, भूख ज़्यादा लगती है और वज़न बढ़ जाता है। Myxedema is another disorder which is caused by the deficiency of thyroxine in adulthood. In this disorder, nervous system is affected, mental activity slows down, hair begins to fall, lethargy sets in, and appetite grows and weight goes up. मैक्सिडिमा में बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है और बच्चा सुस्ती और काहली और बेजारी का शिकार हो जाता है। किसी काम में दिलचस्पी नहीं ले सकता, बाल झड़ने लगते हैं, ज़हनी सलाहियतें कम पड़ जाती हैं, भूख ज़्यादा लगती है और वज़न बढ़ जाता है। ग्वाइटर या गिलहर, the excess secretion of thyroxine leads to heightened metabolic activities and individual feels restless and eyes bulge out. Thyroid glands are enlarged and individuals begin to lose weight and his hands start trembling and the heart beats very fast.
क्वार्टर या गिलहर की बीमारी में थायरॉक्सिन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से इंसान बेचैनी का शिकार होता है, आंखें बाहर को उबल आती हैं। थायरॉइड ग्लैंड्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं और वाज़ा तौर पे बढ़े हुए नज़र आते हैं। वज़न कम हो जाता है, हाथ कांपते हैं और दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। Another important gland is adrenal gland. Adrenal glands play a very important and crucial role during our emotional state. Adrenal glands are located near kidneys and they are paired structure, means they are two in number, and each gland has two parts, adrenal medulla and adrenal cortex. Adrenal medulla secrete two types of hormones. One is called adrenaline and the other is called noradrenaline. Adrenaline secretion produces effects which are very much like sympathetic nervous system, while noradrenaline produces effects which are very much like parasympathetic nervous system. Like adrenaline hormone is released when it is released in the body, it increases blood sugar level, the heartbeat and breathing goes up, blood circulation increases, while noradrenaline hormone bring back all those changes to their normal state. The second hormone of the adrenal medulla, noradrenaline, normalizes all the increased activities due to adrenaline, and it has same effect as the parasympathetic nervous system. एड्रिनल ग्लैंड या कसरी का दूध पेयर्ड स्ट्रक्चर या जोड़े की शक्ल में गुर्दों के पास पाए जाते हैं। हर ग्लैंड या हर गदूद के दो हिस्से हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कजरी मेडुला और कजरी कशर। कजरी मेडुला से खारिज होने वाले दो तरह के हार्मोन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन है। एड्रिनलिन हार्मोन इमोशंस के दौरान यानी कि हिजानी कैफियत के दौरान बॉडी में रिलीज़ होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तब्दीलियां जैसे कि दिल की धड़कन का तेज़ होना, निज़ाम तनफ़ुस की तेज़ी, दौरान खून का तेज़ होना, पल्स रेट का तेज़ होना, जिस्म में शक्कर की मकदार का बढ़ना, इस तरह की तमाम तब्दीलियों का बायस बनते हैं। जबकि नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर काम करते हैं और वैसा ही इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। ऐसी तमाम तब्दीलियां जो कि हिजानात के दौरान पेश आती हैं, उन तमाम तब्दीलियों को नॉर्मल हालत पे वापस लेकर आते हैं, यानी कि सांस की रफ्तार मुतवाज़न हो जाती है, दिल की धड़कन मामूल पर आ जाती है और जज्बाती कैफियत में ठहराव आ जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स या कजरी कशर से खारिज होने वाला हार्मोन हाइड्रोकॉर्टिसोन कहलाता है। इसके इखराज में कमी से खून में शक्कर की मिकदार कम होती है और जबकि इसकी ज़्यादती से इज़्तिराब, फ़िशार, अफसरदगी की कैफियत पैदा होती है। The hormone released by adrenal cortex is called hydrocortisone. The deficiency of hydrocortisone reduces sugar level in blood, while the excess amount of hydrocortisone leads to the restlessness, depression, anxiety, stress, fear, anger, and aggression. The fourth important gland that we're going to discuss is pancreatic gland or pancreas. Pancreas are located below stomach, and a very important hormone that is released by pancreas is insulin. As we all know that insulin is very important in regulating the blood sugar level in our body. In case of increased blood sugar level, most of our organs are affected adversely, while the low level of blood sugar can lead to faintness or coma or eventually death. पेनक्रियास या लबलबे के गदूद से खारिज होने वाला अहम तरीन हार्मोन इंसुलिन है, जो हमारे जिस्म के अंदर शक्कर की मकदार को कंट्रोल करता है।
इंसुलिन का इखराज हमारे जिस्म के अंदर बहुत अहम है, क्योंकि अगर इंसुलिन के इखराज में ख़राबी पैदा हो जाए, यानी कि अगर इंसुलिन की मिकदार में कमी आ जाए तो खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से ऑर्गन्स यानी कि दिल, गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरह अगर इंसुलिन का इखराज बढ़ जाए तो फिर असाब में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है, फ़र्द बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है, यहाँ तक सेक्स ग्लैंड, जिनसी गदूद। Both males and females have sex glands. Though these glands are present at the time of birth, but they activated at adolescence. And male and female sex glands are called testes and ovaries respectively. The hormones which are released by these glands perform various functions, like they have an important role in reproduction, they influence physical growth and behavior, and they're responsible for the development of male and female sex characteristics. जिनसी गदूद मर्दों और औरतों दोनों में पाए जाते हैं। मर्दों में जिनसी गदूद को टेस्टिस, जबकि ख़वातीन में इन्हें बेज़ादानियाँ या ओवरीज कहा जाता है। इन गदूद के हार्मोन जो इम्पॉर्टेंट अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, उनमें से सबसे अहम फंक्शन अफजाइश नस्ल या रिप्रोडक्शन है। उसके अलावा जिनसी रतूबत जो खारिज होती हैं इन गदूदों से, वो जिस्मानी नशोनुमा और किरदार को मुतासिर करती हैं। इसके अलावा इन हार्मोन की बदौलत ही लड़कियों में ख़वातीन वाली, जबकि लड़कों में मर्दाना जिनसी और जिस्मानी खसूसियात पैदा होती हैं। Male sex hormones are known as androgens. It has sub-hormones such as testosterone, which bring about physical changes in adolescence and stimulates the development of sexual behavior and secondary sex characteristics. While the female sex hormones are progesterone, which are concerned with reproduction, and they're also responsible for the regulation of menstrual cycle and reproductive ability of eggs. Another important female sex hormone is estrogen, which is concerned with physical growth. This hormone supports the development of male characteristics in boys and female characteristics in girls. Hyperfunctioning of this hormone in girls leads to development of male characteristics like growth of mustache and beard, deepening of voice in girls. The production of progesterone in women of advanced age is decreased and that of estrogen is increased, and that is why the rate of hair growth on the faces of women rises in old age. While the excess secretion of this hormone in boys promotes the development of female characteristics in them, their voice grows squeaky and they have sparse growth of beard and mustache. कुछ अहम हार्मोन जो कि जिनसी गदूद से खारिज होते हैं मर्द हजरात में एंड्रोजन कहलाते हैं। इसी तरह इनके ज़ेली हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन कहलाते हैं, जो कि बलोगत में काफ़ी जिस्मानी तब्दीलियाँ और जिनसी किरदार और जिनसी खसूसियात पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं। जबकि ख़वातीन में जिनसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं, जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्शन या अफजाइश नस्ल से है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि माहाना निज़ाम की बाकायदगी और एग्स की कारकर्दगी यानी कि बेज़ों की कारकर्दगी जो कि ख़वातीन में खारिज होते हैं, उनकी बाकायदगी या रेगुलरिटी का भी अहम काम सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा अहम जिनसी गदूद एस्ट्रोजन है, जिनका काम जिस्मानी नशोनुमा है। एस्ट्रोजन की मिकदार अगर लड़कियों में मामूल से ज़्यादा हो जाए तो मर्दाना खसूसियात पैदा हो जाती हैं, जबकि अगर मर्दों में इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो निस्वानी खसूसियात पैदा हो सकती हैं। हमारी बॉडी में ग्लैंडुलर सिस्टम, जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत से इम्पॉर्टेंट फंक्शन सर अंजाम दे रहे हैं या बहुत से इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस और फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं या मुतासिर करते हैं। इसीलिए इन तमाम रतूबतों या हार्मोन्स का
मुनासिब मिकदार में खारिज होना पूरी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग की ज़मानत है, जबकि इनमें पैदा होने वाली कोई भी ख़राबी हमारे बहुत से फंक्शंस या अमाल को मुतासिर कर सकती है। इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इन्हीं हार्मोन के इखराज की वजह से बहुत से इमोशनल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि हमारा बहुत सा किरदार मुतासिर होता है।